Our children in this world, we take care of them, we nourish them, we give them a good education, we give them whatever they need to be able to live in this world. But we must never have that thought that they belong to me, कि ये बच्चे परमात्मा दे हैं. So what is the greatest thing that we can do for our children? हम होवे लाले गोले गुरु सिखा के. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Sangat Ji. Welcome to another episode of Sikhan Di Bhagat Mala, where we share the Sakya of Gursikhs, now from the time of Guru Ram Das Ji, as mentioned by Bhai Gurdas Ji and retold by Shahid Bhai Mani Singh Ji. So in Var 11, Pauri number 17, Bhai Gurdas Ji says, Puro Manak Chand hai, Bisan Das Parvar Sadara. So in this Pankti, Bhai Gurdas Ji is speaking about three Gursikhs by the name of Bhai Puro, Bhai Manak Chand and Bhai Bishan Das, who came to the Sharan, to the sanctuary of Guru Ram Das Ji. And they then folded their hands and they do bend to Guru Ram Das Ji, Ki Sache Paatshah Ji, can you please give us such a teaching, such a sikhya, that our cycle of life and death can be cut and we can be liberated. And not only that, Maharaj Ji, if we are liberated, please also we want our family to be liberated along with us as well. So Guru Ram Das Ji then looked at the three Gursikhs and said, Ki if your aim is you want to become Mukta and you want your family to become Mukta with you as well, then the key is all of you should do seva of Gursikhs. And not only that, your children should also do seva of Gursikhs as well. So Guru Ram Das Ji then says, Ki Sangat Ji, we have to recognize that we are the servants of Paramatma, of Vaheguru Ji. All of us are the servants of Paramatma. So if we are the servants of Paramatma, then our children, the whole family, are also then the Das, the servants of Vaheguru Ji as well. So Guru Ram Das Ji explains through this analogy that if a servant who works for a master and that master has a horse, now the servant's duty is every day to bring that horse for a walk or ride on the horse so that the horse gets its exercise and gets to go out and so on. Now throughout the day, the responsibility of the horse, taking care of the horse and the safety of the horse is on the servant, because the servant is the one bringing the horse around and taking care of it, feeding it and so on, bathing it and so on. In the evening, the servant brings the horse back to the master's house. Then now the responsibility belongs to the master. The master is the one who is going to ensure that the horse is safe, the horse is in the stable and so on. Similarly, Sangat Ji, when we become parents, sometimes we end up destroying our own children's lives because we have that ego in our mind that these children belong to us. That I have given birth to this child and this child is now entitled to following my way of life, to following what I have to say and live according to my rules. But we have forgotten that children, jehde sade bacche they are a blessing, a gift from Paramatma, from Vaheguru Ji. How can we say that they are ours? Yes, we might have given birth to them, but even that blessing was given to us by Paramatma. So Guru Ram Das Ji says that we are those servants, and once our responsibility ends during the day, now it belongs to the master. The horse, which initially does belong to the master, and our job was just to take care of them. And then in the evening, we send it back to the master. Similarly, our children, in this world, we take care of them, we nourish them, we give them a good education, we give them whatever they need to be able to live in this world. But we must never have that thought that they belong to me, कि ये बच्चे परमात्मा दे हैं. Even in Gurbani, Mara says, जन्नी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने कि दिन ब दिन आवद कटता है. So when we celebrate our children's birthday, we get so happy that my child is growing up, 1 year old, 2 years old, 3 years old. We tend to forget कि इतना को ना जाने, that we don't remember कि दिन ब दिन that every day the hour, the age is actually decreasing. The time of our child in this world is actually decreasing. So what is the greatest thing that we can do for our children? Is not giving them the best worldly education. That is really good, but the greatest is actually helping them to recognize their true self, which is Atma, and connecting them back to Paramatma.
So which is why as Gursikhs, our job, our first primary responsibility is when we have our children is to help them connect back to Vaheguruji, and that can be in many ways. It depends on how our family is. If your family is oriented towards doing more seva, so you go to the Gurdwara, you love to do seva, then get your child involved in physical seva. If you are a family who love to listen to kirtan or do kirtan, then you get your child involved in that way as well. Love kirtan, do kirtan, listen to kirtan. So Guru Ramdas Ji says that to those Gursikhs कि तुसी सेवा करो Gursikhandi and get your children to do seva as well. So then Maharaj then says to them कि these children have been blessed to you. Now we think that we are the one who's going to take care of them and we provide for them. If we are not there, they cannot survive. But Guru Sahib says कि the rizq Paramatma provides to everybody in this world. The ants, the plants, the animals, our children, even ourselves as well. So Guru Ramdas Ji says to them कि तुसी फिक्र ना करो. You do seva of the Gursikhs, your children do seva of the Gursikhs. Paramatma will provide for your family, and this is the way that you alongside your family can be liberated. So Gurbani in Guru Granth Sahib Ji Maharaj says, Gur ke darshan mokh dwar. That by having darshan of Paramatma Ji is the dwar, is the door to liberation. And Sadgur Seva Parvar Sadar. And by serving the true Guru, Parvar Sadar means you and your family will be saved as well, will be liberated as well. Ki aap tare sagle kul tare. Aap tar janiye, and our job is we don't want to save just ourselves, we want to save our whole family as well. And Guru Ramdas Ji gives bachan to these three Gursikhs by telling them कि तुसी Gursikhandi दी सेवा करो and get your children to serve the Gursikhs as well. So Sangat Ji, this is a teaching for us as well, that if we want to save ourselves and our whole family with us, which is a very big punya that we can do, then the key is as a family unit doing seva of the true Guru of Sache Paatshah together. So Pula Chukan Dikhima, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड हीरो हैं भारत के। अगर चर्चे होते हैं तो इनके। दूसरों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए सिर्फ 23 साल की उम्र में। एक ऐसी उम्र जब लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं। इन्होंने देश के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा और फांसी पे चढ़ गए सिर्फ आजादी के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नॉवल जो कि भगत सिंह की पूरी लाइफ पे बेस्ड है। लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह 2 पार्ट में लेक्चर रहेगा। ये पहला पार्ट है और ये कुलदीप नायर ने लिखी हुई है। बहुत ही जबरदस्त नॉवल है। इसमें एक्सप्लोर किया गया है पूरी लाइफ और पूरी बायोग्राफी भगत सिंह की, और जो बिहाइंड द स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी को दर्शाया है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे उन पे केस चला, कैसे उनका पूरा ट्रायल होता है और किस तरह से जो पूरा का पूरा साइमन कमीशन वाली और महात्मा गांधी से किस तरह के इनके रिलेशन थे, वो सारी की सारी चीजें इस नॉवल में दर्शाई गई है। तो हम इसको देखेंगे। पार्ट 1 है इसका, भाग 1। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज sid_education connect पे आप पूछ सकते हैं। वैसे किसी भी चीज की क्वेरी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा ऑथर के बारे में और नॉवल के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, कुलदीप नायर हैं, ये बहुत ही जाने माने ऑथर हैं। बियॉन्ड द लाइन्स और भी भगत सिंह पे इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं। भारत के काफी अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, काफी अच्छे ऑथर रहे हैं और भारत के लिए काफी इन्होंने लिखा भी है। और जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इवन हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। अब हम सीधे नॉवल पे आते हैं। देखिए, नॉवल क्या है, ये पूरी की पूरी तरह भगत सिंह की लाइफ को एक्सप्लोर करती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें जो इन्होंने सोर्सेज उठाए हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल्स छाने हैं, न्यूज़पेपर्स अलग अलग लाइब्रेरीज से उठाए हैं, जो भगत सिंह की नोटबुक्स थी। आपको पता है कि भगत सिंह ने वैसे तो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने जला दिया या पता नहीं
है अभी नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लिखी थी। क्योंकि भगत सिंह बहुत एक्टिव थे, बहुत पढ़ते थे और हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम करते रहते थे, है ना। तो वो तो वक्त ही बताएगा। इस नॉवेल में उसका भी उल्लेख है कि ऑटोबायोग्राफी भी भगत सिंह ने लिखी थी। वैसे भगत सिंह के लेटर्स काफ़ी फेमस है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है, जो भगत सिंह ने अपने लेटर्स लिखे हुए थे और लोगों को संदेश दिया था, देश को संदेश दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे इस नॉवेल में लगी वो थी रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की जब इनको फांसी दी जा रही थी, महात्मा गांधी बचा सकते थे, कांग्रेस का स्टैंड, जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड, दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या थे, वो सारी चीज़ें इस नॉवेल में है, लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाला। उसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम थोड़े इंडिया की हिस्ट्री भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉवेल का रिव्यू। ऑथर के बारे में पता चल गया, नॉवेल का एक ओवरव्यू मिल गया, तो अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, भगत सिंह का जो जन्म था वो 1907 में हुआ था, है ना। इनके जो पिताजी थे वो किशन सिंह थे, माताजी थी विद्यावती, बंगा जिले में हुआ था, ठीक है। उस समय पंजाब प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। तो यहां पे जन्म हुआ था। शुरू से ये काफी इनका जो खून था ना, देखिए भगत सिंह एक अच्छी फैमिली के थे, वेल टू डू फैमिली के थे, ठीक है, बढ़िया थी, अच्छी खेती बाड़ी सब थी। और इन रेवोल्यूशनरी का जो खून था, जो क्रांतिकारी का खून होता है ना, इनके पूरे परिवार में ही था। इनके पूरे परिवार में भी काफी क्रांतिकारी हुए थे। तो जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो इनके दो अंकल, इनके चाचा जी अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, इनकी रिलीज हुई थी, है ना। तो ये तो भाई डबल सेलिब्रेशन होगी। एक तो भगत सिंह का जन्म, और भाई देखिए जब किसी का जन्म होता है ना, पता नहीं होता है वो क्या करेगा, कितने बड़े बड़े काम कर जाएगा। इनके परिवार को भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि भगत सिंह इतने बड़े बड़े काम कर जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भगत सिंह शुरू से ही देशभक्ति पूरा, मतलब अपने सिर्फ माइंड में एक ही चीज लेके चलते थे, देश को आजाद कराना है। 1919 में आपको पता ही है कि देखिए, अब मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाने वाला हूं, ठीक है। 1919 में होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है कि नहीं। आई एम सॉरी, वेल एक्चुअली 1919 में नहीं है, 1920 में हुआ था। आई एम रियली सॉरी। तो ये 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको 20 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी डेट इधर उधर हो जाती है कभी मेरे से भी, है ना। तो 1920 में महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थोड़ा इससे पहले चलते हैं। देखिए 1909 में क्या आता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आता है, ठीक है। जस्ट भगत सिंह के जन्म के 2 साल बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आता है। लॉर्ड मिंटो उस समय वाइसरॉय होते हैं, ये रिफॉर्म लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, भारत के कानून का एक तरह से ड्राफ्ट होता है, खाका होता है, रिप्रेजेंटेशंस का ड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो होता है, तो अब इसमें क्या होता है कि हर 10-10 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलती है उस समय ब्रिटिश सरकार। तो 1919 में ही ये मॉन्टैक्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पे आता है, ठीक है, जिसको रोलेक्ट एक्ट कहते हैं 1919 में। इसमें भयंकर डिस्क्रिमिनेटरी प्रपोजल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह बोला जाता है कि ऐसा है, बिना किसी कार्रवाई के हमको शकबर हुआ तो उठा के जेल में डाल देंगे। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। जलियांवाला बाग कांड हो जाता है अप्रैल 1919 में। लाखों लोग, सत्यपाल और किचलू को इसी की वजह से जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो इस एक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो उनकी सेंटेंस के लिए वहां पे लोग जमा हो जाते हैं जलियांवाला बाग में, बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और भारत में तो संविधान में भी है भैया, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जनरल डायर बोलते हैं उड़ा दो सबको। क्या होता है कि उस जो जलियांवाला बाग होता है उसकी बाउंड्रीज को सारे के सारे गार्ड्स घेर लेते हैं, ब्रिटिशर जितने भी होते हैं, और जनरल डायर ये आदेश दे देते हैं उड़ा दो सबको। तो कुछ ही मिनटों में मैदान जो होता है ना वो पूरा साफ हो जाता है ना। वो बिल्कुल एक लाशों का मैदान बन जाता है। एक छोटा सा कुआं होता है, अपनी जान बचाने के लिए वहां तक लोग कूद जाते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि आज भी उस कुएं से खून निकलता है। अगर आप उसका पानी ले तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लड का है। इतने लोग वहां पे कूदे थे। तो भगत सिंह क्या करते हैं, सीधे वहां पे जाते हैं। एक दिन भगत सिंह सीधे वहां पे जाते हैं। स्कूल पे पढ़ते हैं भगत सिंह शुरू से ही, मैंने बताया कि मन में ही इनका ये बिल्कुल एक विचार था कि क्रांति तो लानी ही लानी है। तो स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग जाते हैं। अब घर वाले बहुत परेशान कि अरे भगत आया नहीं, भग्गू भग्गू इनको घर पे बोला जाता है, तो भग्गू आया नहीं, स्कूल से कहाँ चला गया, इनके टीचर परेशान। तो ये सीधे जाते हैं जलियांवाला बाग। पूरे
ग्राउंड को देखते हैं वो, वहां पे जो कपड़े छितरे पड़े हुए हैं, खून के धब्बे पड़े हुए हैं, गोलियां पड़ी हुई हैं, ये सब देख के एक छोटा सा बच्चा, आप सोचिए छोटा सा बच्चा, ये सब देख के एकदम विचलित हो जाते हैं वो। बॉटल होती है उनके पास, मिट्टी भर के लाते हैं, घर वापस आते हैं। घर आते हैं, उनकी माँ बोलती है, बहुत उदास होता है भगत सिंह, क्या हुआ बेटा? कोई जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, काफी देर तक बैठे रहते हैं, उस बॉटल को देखते रहते हैं और उसके बाद अपनी माँ विद्यावती से बोलते हैं, माँ ये हमारे लोगों की मिट्टी है, खून है इस मिट्टी में, हमारे लोगों का है ना, मैं ये वादा करता हूं कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बॉटल को इन्होंने रैक पे रखा जहां भगवान थे और डेली पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे और डेली उनको नमन करते थे उस मिट्टी को। ये तो इतनी छोटी सी उम्र में इनका जज्बा था। तो भाई ऐसे लोग अगर महान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ऐसा देश के लिए सोचते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उधर महात्मा गांधी भी बहुत दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी को पंजाब जाने से सीधा मना कर दिया था ब्रिटिश में। पंजाब जा रहे थे, बीच में ही बोल दिया, महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, ठीक है, चीजों को सही करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप नहीं आएंगे और अगर आप आए तो आपकी गिरफ्तारी पक्की। महात्मा गांधी जी ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ो। 1920 में छेड़ दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बैंड बजा दी। भगत सिंह सबसे ज्यादा खुश थे। भगत सिंह ने बोला आजादी मिलनी ही मिलनी है यार, और बहुत गली गली घूमते थे, सबको बताते थे अब हम लोग फाइनली आजाद होंगे, गोरों का राज खत्म होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है 1922 में, ठीक 2 साल बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। भैया एक बात तो है, ब्रिटिशर की किस्मत तो बड़ी अच्छी थी, है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। अब उस इंसिडेंट में इंडियन वायलेंट हो जाते हैं, जो मास होता है वो वायलेंट हो जाता है और पुलिस वालों को जला देता है। देखिए इसकी भी एक अलग स्टोरी थी। कंडीशन कुछ ऐसी बन गई थी, वहां पे भी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने फायर ओपन कर दी। और जब अंग्रेजों ने गोली चलाई तब भी, मतलब पहले तो उन्होंने लाठी चार्ज किया, तब भी वहां पे कोई कुछ नहीं बोला, तब भी सब पीसफुल थे, क्योंकि गांधी जी के साफ साफ ये निर्देश थे कि भैया नॉन वायलेंट रहना है, हमको लड़ाई नहीं करनी है, बॉयकॉट कर दो सबका। तो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लोग, लेकिन ब्रिटिशर फायर ओपन कर देते हैं, उसमें 3 लोगों की जान चली जाती है और उसमें फिर ऐसा भयंकर वायलेंस, मासेस जो है ना, वो कुछ पुलिस वालों की हत्या क्या, उनको जला देता है। तो इससे एजिटेट होके भैया महात्मा गांधी जो हैं पूरा का पूरा मूवमेंट ले लेते हैं वापस। भयंकर क्रिटिसिज्म होता है, भगत सिंह जाते हैं टूट, बहुत दिमाग खराब होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर वापस नहीं लिया होता तो भैया कुछ और ही सिनारियो होता, हमारा भारत बहुत जल्दी आजाद हो गया होता। लेकिन होती ये चलता नहीं है हिस्ट्री में, बहुत ही फाइन लाइन होती है। ये होता तो मैं वो हो जाता, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में रहना चाहिए। हुआ ये था कि महात्मा गांधी ने मूवमेंट पूरा वापस ले लिया था। भगत सिंह, देखिए अगर नहीं लेते तो भगत सिंह का जन्म भी तो नहीं होता ना भैया। किस्मत के कुछ और ही प्लान्स होते हैं, हम लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ और ही खेल जाते हैं सब लोग। तो ये चीज है, तो लाइफ ऐसी होती नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो भगत सिंह जैसे हीरो का भी जन्म नहीं होता अगर ये चीज नहीं हुई होती। तो ये चीजें जरूरी भी थी, है ना। तो ये भगत सिंह बहुत एकदम दिमाग खराब हो जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि भैया मुझे लगता है अपने ही हाथों में चीजों को लेना पड़ेगा, और यहीं से शुरुआत हो जाती है महात्मा गांधी और भगत सिंह के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पे। महात्मा गांधी भगत सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, भगत सिंह महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनके विचारों की इज्जत नहीं करते हैं, ना महात्मा गांधी ना भगत सिंह। तो 1923 में कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, नेशनल कॉलेज में ये एडमिशन लेते हैं, लाहौर में है ये। और देखिए भगत सिंह को पढ़ने का बड़ा शौक होता है। इस नॉवेल में भी यही बताया गया है, लेनिन के बारे में, गैरीबेल्डी के बारे में, जो कि इटली के बहुत ही जबरदस्त जनरल थे। इवन इब्राहिम लिंकन भी गैरीबेल्डी को, जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, वो भी चाहते थे कि वो उनकी यूनिट में आ जाए और चीजों को सही करें। तो इन सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, स्पेशली लेनिन से तो बहुत प्रभावित थे। और एक चीज और थी, भगत सिंह बहुत पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, इवन जब वो अपने जेल में थे तब वो जो भी उनसे विजिट करने आता था, वो उनका सख्त ऑर्डर थे, सख्त निर्देश थे कि भैया एक बुक जरूर लेके आओ।
और बहुत से जेल में राइटिंग्स भी भगत सिंह ने लिखे, बहुत चीजें लिखी भी बहुत, और वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो वैसे खो ही गई हैं, अब तो आपको मिलेंगी भी नहीं क्योंकि जेल अथॉरिटीज ने या तो जला दी है या फिर पता नहीं वो कहाँ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है चीजें सामने आ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें थी। फाउंडर थे नौजवान भारत सभा, और इन्होंने मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भी ज्वाइन किया था, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को भी ये फाउंडिंग मेंबर थे। तो ये सारी चीजें थी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब देखिए, नॉवल जो शुरुआत होती है वो 1931 में ही होती है। 1931 से ये पीछे से थोड़ा आगे बढ़ती है, मतलब इन द सेंस कि ये लास्ट इवेंट को पहले दिखाती है। तो 1931 में किस तरह से इस नॉवेल में दर्शाया गया है, एक तो नरेशन बहुत ही जबरदस्त है कुलदीप नायर का, मजा आ गई थी मुझे तो पढ़ के, ऐसा लग रहा था कि एकदम सच में हो रहा है। तो ये बहुत, तो जो 23 मार्च 1931 को आपको पता ही है फांसी, ये प्रीपोन किया गया था बेसिकली इनकी फांसी को, एकदम से ये ऑर्डर आया था ताकि एकदम हिला दिया जाए सबको। एस लिखना भूल गया हूं तो ये मैं लगा देता हूं। तो ये जो 23 मार्च 1931 एक ऐसे ही दिन था, आमतौर पे जैसा दिन होता है। वार्डन चरत सिंह जो थे ये बहुत ही हम्बल इंसान थे और भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। दोस्त इन द सेंस कि बहुत मानते थे भगत सिंह को, और जो भी प्रिजनर्स थे, फेलो प्रिजनर्स थे। वैसे भी आपको पता ही होगा, नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी, उसका रिव्यू किया है मैंने, उनकी ऑटोबायोग्राफी का, आप ज़रूर देखिएगा, कि भैया जेल में ना वार्डन से बड़ी अच्छी दोस्ती रखो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम सीधे वार्डन को बताओगे, लेटर लिखोगे अथॉरिटीज को, उसका जवाब बाद में आएगा, वार्डन पहले हेल्प करेगा। तो वार्डन से बड़े अच्छे रिलेशन थे भैया, क्यों नहीं होंगे, थे तो भारतीय, है ना। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, एक चीज और थे कि भगत सिंह की जो यूनिट थी उनको मतलब कॉमरेड्स बोलते थे, क्योंकि लेनिन का जो मूवमेंट था उसमें ये वर्ड बहुत अच्छे से सामने आया था। उनके जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उनके मेंबर्स को भी कॉमरेड्स बोला जाता था, है ना। थोड़े लेफ्टिस्ट थे भगत सिंह, पूरे लेफ्टिस्ट थे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपको पता ही होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं भी पता है तो किसी दिन मैं उस पर लेक्चर लेके बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम उस टॉपिक को नहीं छूते हैं। होता है ना सेंटर, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो चरत सिंह थे, उनके वार्डन बहुत ही क्लोज थे। जब ये डिसीजन आता है कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, देखिए एक चीज मैं और बताता हूं, इनको फंसाया भी गया था। फंसाया इन द सेंस कि जब इनका ट्रायल हो रहा था, हालांकि ये हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, ऐसा भयानक साजिशें रची गई थी, जबरदस्ती गवाहों को पकड़ के ले जाया गया, जबरदस्ती फर्जी, मतलब पूरा का पूरा केस बनाया गया, बहुत ज्यादा बिल्ड किया गया। भगत सिंह ने देखिए जो किया था, ठीक है, वो ब्रिटिशर के हिसाब से मिलिटेंट थे, लेकिन जो ब्रिटिशर करते आए थे इतने सालों से, वो क्या सही था? उनके पापों का हिसाब तो देना ही था ना, है ना। और दूसरी एक और चीज, भगत सिंह के खुद के 3 मेंबर्स ने धोखा कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं होती। तो जब ये न्यूज सामने आती है तो कैदी तो बहुत ही परेशान होते हैं, एकदम ही मतलब डेवस्टेट हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, आंसू निकलने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया ऐसा, है ना। जितने भी कॉमरेड्स थे, और जैसा कि मैंने बताया कि भगत सिंह बुक्स बहुत पढ़ते थे, तो अपने आखिरी दिनों में भी वो बुक पढ़ रहे थे। और जब उनको बोला जाता है कि भैया तुम्हारा टाइम आ गया, तब भगत सिंह बोलते हैं ये बात, देखते नहीं, अभी मैं बुक पढ़ रहा हूं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से अभी मुखातिब हो रहा है, मिल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चलते हैं। कौन सी बुक थी वो, बता सकते हैं? तो लेनिन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और उसके बाद जब उनको ले जाया जाता है, हाथ खोल के ले जाया जाता है, ठीक है, फाइनली तीनों लोग, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीनों लोग बोलते हैं कि हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। सबकी आंखें नम होती हैं, सुबह का वक्त होता है, तीनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं, गले मिलते हैं, जो रस्सी होती है फांसी की उसको चूमते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और फांसी हो जाती है उनको, ठीक है। वहां पे ऐसा, उस समय ऐसा नज़ारा इतना खराब और इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि जो उनके अगेंस्ट थे वो भी इमोशनल हो जाते हैं। इवन वहां पे एक अटेंडेंट होता है, पुलिस अटेंडेंट होता है, वो बॉडी तक आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है, कहता है मुझे नहीं करना है सब, नहीं, वहीं पे उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो उन्होंने सारी जो क्रुएलिटी की हदें पार कर दी थी। उनको पता था कि इनके शव को बाहर नहीं ले जा सकते, अगर ले गए
हालत खराब कर देंगे सब लोग। पूरी की पूरी जो जो जनता है, वैसे ही भगत सिंह से उस समय बहुत ज्यादा इंस्पायर थी, अगर ले गए ना तो ये लोग मार देंगे हम लोगों को, ठीक है। तो भगत सिंह को क्या करते हैं, उनके लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में बंद करके, तीनों की लाश के, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को सतलज रिवर के किनारे फेंक आते हैं, ठीक है। पहले उनको जला के फेंक आते हैं बस। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि कुत्ते नोच रहे हैं उन लाशों के, जो बोरे में जो लाशें होती हैं कुत्ते नोच रहे हैं। वहां पे जब गांव वाले देखते हैं ये क्या है, जब पूरा का क्रॉस एग्जामिन करते हैं तब बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की लाशें हैं। तब उनका प्रॉपर क्रेमेशन किया जाता है और इससे इतना ज्यादा रोष फैलता है कि फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई, ये पे बॉडीज होगा और यहाँ डिस्कवर्ड होगा, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब क्या होता है कि जो लास्ट सॉन्ग वो गाते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप देखिए, जब ये वक्त आता है, उनको फांसी देने का वक्त आता है, तो ये गाना उनके जुबान पे होता है कि कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। क्या बात है। लेकिन ऐसा सच में हुआ है? भगत सिंह का यह मानना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, यह व्यवस्था से। वो बोलते थे कि अंग्रेज तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर ये भूरे लोग, ब्राउन लोग जो हम हैं, जो हम भारतीय हैं, वो बैठ जाएंगे और इस व्यवस्था को खत्म करना है, ताकि उन लोगों को चीजों का सही हक मिले जो वाकई डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? पता नहीं। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हम और नजर डालते हैं भगत सिंह की जर्नी पे। देखिए, ये एक्चुअली जो नॉवेल है वो सीधे 1931 से ही शुरू होती है। पूरा का पूरा इसमें हिस्टोरिकली दिखाया गया है कि क्या उस समय माहौल था और किस तरह से उनका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो 1924, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत शुरू से ये काफी एक्टिव थे और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। भगत सिंह वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1924 में वो मेंबर बनते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी बता चुका हूं। अब यहां पे क्या होता है, 1927 में इनको पहली बार अरेस्ट किया जाता है काकोरी केस में। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप काकोरी केस बताइए क्या था, 3-4 लाइन में बताइएगा, कोशिश करिएगा। और ये भी बताइए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, है ना, जरूर बताइए। ये एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो 1927 में पूरा का पूरा केस होता है। और उस समय क्या होता है ना कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तो थोड़ा एक वैक्यूम सा आ जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि 1923 में स्वराज पार्टी भी फाउंड हो जाती है। एनसी केलकर, सीआर दास फाउंड करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा है भैया, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जाके जाओ संसद में, उनकी पार्लियामेंट में जाओ, वहां पे जाके चिल्लाओ, सीटें जीतो और उसके बाद वहां पे जाके तुम करो, तब कुछ होगा, तब ब्रिटिशर शायद सुनेंगे। तो यही करते हैं। स्वराज पार्टी फॉर्म होती है लेकिन बाद में कुछ इतना खास कर नहीं पाती। तो काफी वैक्यूम सा हो गया होता है चीजों को। अब भैया कानून का क्या, 1909 में मैंने आपको बताया था मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, 10 साल बाद रिव्यू कानून को करना है ना। 1919 में आया था। फिर कौन सा, मॉन्टेक्स क्लेम्सफोर्ड। अब कब आएगा, 1929 में, है ना। 10 साल में इसको रिव्यू करना है कानून को। 1929 में आना है कानून। आ कब गया, 1927 में। 1927 में आया। 1927 में ये साइमन कमीशन के नाम से आया, ठीक है। तो साइमन कमीशन के नाम से आया था। तो 1927 में ये भी बहुत बड़ी चीज हुई थी। अब क्या था, जो आइडियोलॉजी थी उस समय वो बहुत डिफरेंट थी। गांधी जी पूरब, भगत सिंह पश्चिम। गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, अहिंसा। भगत सिंह बोलते थे बहरों को जगाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो इस तरह से, हालांकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी क्रिटिसाइज भगत सिंह को नहीं किया। यहां तक नेहरू ने कहा था कि भैया भारत के वीर पुत्र हैं भगत सिंह, ये तक नेहरू के स्टेटमेंट थे। और ऐसा कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, कभी नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन नेहरू को भी पता था और गांधी जी को भी पता था कि देश के लिए ये भी लड़ ही रहे हैं एक लड़ाई। ये अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और ये अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। भगत सिंह की मेन प्रॉब्लम क्या थी, आई एम रियली सॉरी मैंने प्रॉब्लम बोल दिया। भगत सिंह की मेन मांग क्या थी कि वो चाहते थे
पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। वही कांग्रेस क्या चाहती थी? डोमिनियन स्टेटस। अच्छा, ये क्या होता है? कांग्रेस बोलती थी कि भैया देखो, जहां कुछ नहीं वहां कुछ सही, हमको डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश कंट्रोल करेगी हमको, मतलब पार्शियल इंडिपेंडेंस। पार्शियल इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमस बॉडी बना दो लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश का ही रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि पूरे कंट्री में ब्रिटिश, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में हमारा कंट्रोल, तो ये तो बेकार है ना। फायदा क्या है? अल्टीमेटली तो पावर सेंटर के हाथ में है, 50-50% की हिस्सेदारी नहीं। भगत सिंह बोलते थे पूर्ण स्वराज, उससे नीचे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमेशा इनका स्टांस रहता था। वहीं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वो भी इसी को लेके हुई थी, हालांकि वो फेल हुई थी, बुरी तरह फेल हुई थी, है ना। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और गांधी जी से बहुत ज्यादा भगत सिंह प्रभावित थे। गांधी जी को बहुत मानते थे भगत सिंह, आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। भगत सिंह को पता था कि गांधी एक हीरो हैं और उनकी देश सुनता है। वो एक ऐसे इंसान है जिसको लाखों लाखों लोग फॉलो करते हैं। अरे भैया, भगत सिंह ने भी तो उनको फॉलो किया था ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब आगे देखते हैं क्या बात हुई। अब किलिंग ऑफ सॉन्डर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था भगत सिंह की लाइफ का, और यहीं से भगत सिंह की दिशा बदल गई। देखिए, मैंने अभी बताया था कि आपको 1927 में कानून आता है। देखिए, वैसे तो आना 1929 में था, लेकिन सरकार चेंज हो जाती है, इसलिए 1927 में लाना पड़ता है, ठीक है। उसके डर से लाना पड़ता है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन मैं सेपरेट हिस्ट्री का लेक्चर में आपको इसको समझाऊंगा कि पूरा का पूरा क्या था। फिलहाल आप ये समझिए कि 1927 में साइमन कमीशन आता है। भैया, साइमन कमीशन आता है, उसमें एक भी भारतीय नहीं। हमारा कानून बन रहा है, भारत को नहीं शामिल करोगे क्या? भारतीयों को? दिमाग खराब हो जाता है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ, साइमन गो बैक, ठीक है, इसके खिलाफ मार्च करते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि हर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। अब यहां पे क्या होता है, जो जेम्स ए स्कॉट होते हैं उस समय, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करते हैं, वो क्या बोलते हैं? लाठीचार्ज करो। अब उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह चोटें आई होती हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है 1928 में। इसी की वजह से दिमाग खराब हो जाता है भगत सिंह का। भैया, उनकी मौत खाली नहीं जाएगी, बदला तो लेना है, बदला लेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि सबको याद रहेगा। पूरी की पूरी एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, ठीक है, साजिश रची जाती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। इसमें जय गोपाल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जो कि मेंबर होते हैं, जो अपनी यूनिट के लीडर होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। और भगवती चरण वोरा की वाइफ दुर्गा देवी, वो भी। इवन क्या होता है कि जब पूछा जाता है कि भैया इनको मारेगा कौन, तो सबसे पहले दुर्गा देवी अपना नाम, अपना मतलब, जिनको दुर्गा भाभी भी कहते हैं सब वहां पे यूनिट के मेंबर, वो अपना हाथ उठाते कि मैं मारूंगी। कहते हैं नहीं नहीं, आप नहीं। तो पूरा का पूरा प्लानिंग होती है, वहां पे सिग्नल दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग बताई है इस नॉवेल में कि किस तरह से कंडीशंस होती हैं। जो कार का नंबर होता है 6728, और वहां पे ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल है वहां पे जाना, मतलब बच के निकलना उस एरिया से वो बहुत मुश्किल है। हालांकि प्लान करते हैं वो लोग, और वहां पे बगल में डीएवी स्कूल होता है, तो वहां से होते हुए, अंदर से होते हुए पूरा का पूरा वहां से निकल जाएंगे और तुरंत भागना है, मार के, रुकना है ही नहीं, ठीक है। तो जय गोपाल जो होता है उसको बोला जाता है कि आप नंबर को याद कर लेना, तुम 6728 गाड़ी का नंबर होता है। और जय गोपाल बाद में इनके खिलाफ गवाही देता है, और इसी की वजह से भगत सिंह को फांसी भी होती है। सेंटेंस जो होता है, वो जो मेंबर दगा दिए थे, इसमें एक जय गोपाल होता है, उसकी भी बात हम पूरा करेंगे, ट्रायल देखेंगे किस तरह से था। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है। लेकिन क्या होता है, जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली। मतलब जो सिग्नल होता है वो रॉन्ग हो जाता है, और जॉन पी सॉन्डर्स को वहां पे जो असिस्टेंट एसपी ऑफ पुलिस होते हैं उनको उड़ा दिया जाता है, उन पे गोली चला दी जाती है। अब उसमें से जब ये चीज होती है तो सब भागते हैं, ठीक है, भागेंगे ही भाई, है ना। तो वहां पे पीछा जो करता है भगत सिंह और पूरी यूनिट का पीछा करता है, वो एक इंडियन होता है। तो जो चंद्रशेखर आजाद होता है उसमें बोलते हैं कि देखो, मैं किसी भारतीय पे गोली नहीं चलाऊंगा, ये सब नॉवेल में लिखा हुआ है। लेकिन वो मानता नहीं है और उस पर भी गोली चलानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इनकी ढूंढैया चालू अब ढूंढो
पूरी यूनिट को ढूंढो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ढूंढो, साम दाम दंड भेद शो चाहे करो, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। बड़ी प्रॉब्लम। अब बहरूपिये का भेष बदलते हैं। देखिए भगत सिंह और पूरी जो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से बच के चीजों को निकलना पड़ता है। तो 1928 19 दिसंबर में सुखदेव दुर्गावती जो दुर्गा भाभी होती हैं, दुर्गावती देवी, उनको बुलाया जाता है हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प करिए और हमको यहां से निकलना है। भगत सिंह बिल्कुल एक प्रॉपर एक सूट बूट में तैयार होते हैं, ठीक है। एक एलीट क्लास जो होते हैं ना, सबसे अपर क्लास, उसका पूरा लुक रखते हैं और सुखदेव उनके नौकर होते हैं, ठीक है। और जो दुर्गावती देवी होती है वो भगत सिंह का वाइफ मतलब एज अ रोल वो प्ले करती है ताकि वहां से बच के निकला जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते ना तो पुलिस तो पकड़ लेती ना उन्हें, तो उनको रूप बदल के निकलना था शहर से बाहर। तो इसकी वजह से तीनों लोग जाते हैं, कोई उन पे शक नहीं करता और आराम से कलकत्ता निकल जाते हैं। चंद्रशेखर जो आजाद होते हैं वो तो भैया आराम से, भैया मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। बहुत ही जबरदस्त इंसान थे, रेवोल्यूशनरी थे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी जो एक ट्रूप जा रहा होता है, पंडितों का एक ट्रूप जा रहा होता है भजन गाते हुए मंदिर की तरफ, हरिद्वार की तरफ, तो वह उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है कि ये सारी हुई, ठीक है। अब यहां पे दुर्गा भाभी के साथ वो काफी टाइम भी बिताते हैं। भगत सिंह, देखिए पहले तो दुर्गा भाभी और दुर्गावती देवी और भगत सिंह की कोई ऐसी खास बातचीत नहीं होती है, लेकिन जब टाइम थोड़ा बिताते हैं कलकत्ता में, तब दुर्गा भाभी को वाकई लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं है, इसका एक बहुत अच्छा दिल भी है ना। ये लोगों के लिए सोचता है, ये एक इमोशनल इंसान है। तब भगत सिंह अपनी दूसरी साइड शो करते हैं कि किस तरह से लोगों को, ठीक है रेवोल्यूशन करना चाहिए, आजादी के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होना चाहिए। और भगत सिंह कोई उस समय कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है जो आगे ले जा सके, खाली गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी की हिस्ट्री मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा क्या था, है ना। तो वो बोलते हैं, वो इसमें भी विश्वास नहीं करते कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट है। देखिए कांग्रेस भी भले ही वो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हो, लेकिन जब वो बनी थी ना, तो वो सिर्फ एक ब्रिटिशरी की एक ऐसा कहा जाता कि यूनिट है। 1885 में जब उसको फॉर्म किया जाता था और वहां पे खाली रिच क्लास लोग आते थे। वो तो जब बाद में इसमें लोग जुड़ना शुरू हुए और गांधी जी स्पेशली, देखिए गांधी जी ने कांग्रेस को उठा दिया। जब गांधी जी ने ज्वाइन किया ना, तब कांग्रेस उठ गई, क्योंकि उनकी लाखों के लाखों लोग जुड़ते थे। अफ्रीका में वो वैसे ही कमाल करके आ चुके थे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें थी। तो उस समय भगत सिंह मानते थे कि भैया देखो रेवोल्यूशन लाना है, इन सब से कुछ काम होने वाला नहीं है, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो इसीलिए पार्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं। लेकिन गदर पार्टी के उनके ख्यालात काफी मिलते जुलते थे, तो वो बोलते थे, हालांकि इसमें भी वो पूरी तरह बिलीव नहीं करते थे। तो एक चेंज तो लाना था। और दूसरी बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। देखिए भैया ब्रिटिशर ने तो डिवाइड एंड रूल किया है, डिवाइड कर दो, फूट पड़वा दो, रूल करो। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है उसका, है ना। लेकिन भगत सिंह बोलते थे कि जिस देश में ईद और दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, उस देश में अगर ये चीजें होंगी तो कैसे काम चलेगा। सदियों से, जब से मैंने मतलब जहां मैं जाता हूं मैं यही देखता हूं कि हर कोई एक है। भगत सिंह का तो ये नारा ही था ना, कौमी एकता जिंदाबाद। हर कोई एक है, हर कोई मतलब लोगों की हेल्प करता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है फिर। तो इन चीजों का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये मेरे लेक्चर का एंड था, पार्ट 1 का एंड था। पार्ट 2 इसका बहुत ही जल्द हाजिर होगा और मैं उसमें और भी चीजें कवर करूंगा भगत सिंह के लाइफ के बारे में। भैया अभी तो ट्रायल आना बाकी है, अभी तो जो असेंबली बॉम्ब केस था वो आना बाकी है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी एक साथ पुकारा जाता है। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिशन में ही देखते हैं, लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर इन दोनों के बीच में क्या लिंक है। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा रही थी? तो
क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश भी करी थी? आइए आज के इस गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड में इतिहास के इस हिस्से पर नजर डालते हैं। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोरा जैसे कई और रेवोल्यूशनरीज ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ। लेकिन फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी के द्वारा, क्योंकि चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है वो वायलेंट बन जाता है। और जैसा आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी वायलेंस के सख्त अगेंस्ट होते हैं, इसलिए इस मूवमेंट को यहीं खत्म कर देते हैं। In retaliation against brutality, a crowd had attacked a police post at Chauri Chaura. Hearing of this instance of violence, Gandhi immediately called a halt to the movement. लेकिन ऐसा करने से बहुत से रेवोल्यूशनरीज डिसइल्यूजन्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है उनके साथ अब धोखा हो गया है। वो तो इतने जोश में थे कि आजादी पाकर रहेंगे, लेकिन अचानक से अब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया है। ऐसे में क्या किया जाए? कुछ रेवोल्यूशनरीज जैसे कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास डिसाइड करते हैं हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, तो वो स्वराज पार्टी बना लेते हैं। कुछ युवा लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी नई एसोसिएशन बनाकर इस रेवोल्यूशनरी काम को जारी रखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को बनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1923 में ये इनका मैनिफेस्टो भी लिखते हैं, जिसका नाम होता है द रेवोल्यूशनरी। अगस्त 1925 में फेमस काकोरी केस होता है, जब 10 HRA के रेवोल्यूशनरीज एक ट्रेन को लूटते हैं। इस ट्रेन को लूटते वक्त एक रेवोल्यूशनरी नाथ गुप्ता गलती से एक्सीडेंटली गोली मार देते हैं एक पैसेंजर अहमद अली को, और उनकी हत्या हो जाती है। इसी रीजन से पुलिस एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है HRA को पकड़ने के लिए, HRA के रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए। 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बचकर निकल लेते हैं। एक साल बाद 1926 में अशफक को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद 4 को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी। 5 को काला पानी भेजा जाता है और 11 और को रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जाती है। इसी के पैरेलल भगत सिंह की कहानी चलती है। 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन करते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में। ये किसानों और मजदूरों को यूनाइट करने का काम करती है। Bhagat Singh returned to Lahore. He was one of the founders of the Naujawan Bharat Sabha. It stood for socialism and direct action against foreign rule. इसका मैनिफेस्टो लिखा जाता है भगवती चरण वोरा और भगत सिंह के द्वारा। ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी ज्वाइन करते हैं, और काकोरी अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद काम करते हैं सारे रेवोल्यूशनरीज को यूनाइट करने का। 1928 में सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, तो ये बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पीछे क्रेडिट जाता है भगत सिंह को ही। फिर से एक नया मैनिफेस्टो बनाया जाता है इसका, और भगत सिंह के विचार, जैसा मैंने पुराने वीडियोस में बताया था, मार्क्स के विचारों से काफी इन्फ्लुएंस थे। ये सब बैकग्राउंड नॉलेज थी। अब उस केस की बात करते हैं जिस केस में भगत सिंह को अरेस्ट किया गया। 1928 की बात है कि सत्याग्रह चल रही थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज ऑर्डर करते हैं प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के अगेंस्ट। उनमें से एक इंसान होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, जिन्हें चोट लग जाती है और बाद में वो उन्हीं चोटों की वजह से शहीद भी हो जाते हैं। दिसंबर 1928 भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स डिसाइड करते हैं कि वो स्कॉट को जाकर मारेंगे, लेकिन गलती कर देते हैं। वो आइडेंटिटी की मिस्टेक हो जाती है और वो एक्चुअली में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार डालते हैं, 21 साल के जॉन सॉन्डर्स। इसी इंसिडेंट में एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल चनन सिंह, जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे होते हैं, वो राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ने भागते हैं और चंद्रशेखर आजाद बीच में आकर उन पर भी गोली चला देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, और वो भी मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को बुलाया जाता है द लाहौर कंस्पिरेसी केस,
और अगर आपने रंग दे बसंती पिक्चर देखी है दोस्तों, तो उसमें ये पूरा लाहौर कंस्पिरेसी केस में जो होता है और जो गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार दिया जाता है, इसको बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। पुलिस एक भारी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है लाहौर में, लेकिन भगत सिंह अपने आप को डिस्गाइज करके वेस्टर्न अटायर में भाग निकलते हैं लाहौर से कलकत्ता। एक दूसरा इंसिडेंट भी है यहां पर जो भगत सिंह के अरेस्ट के पीछे कारण बनता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में एक बम गिरा देते हैं। सेंट्रल असेंबली उस टाइम पर दोस्तों वही बिल्डिंग है जो आज के दिन इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ब्रिटिश इंडिया की सरकार उस वक्त सेंट्रल असेंबली में दो बड़े बिल्स पास कर रही थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल्स का बेसिकली कंक्लूजन ये निकल रहा था कि सारी स्ट्राइक्स को ये इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे, मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ही इलीगल बनाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई होते हैं वित्तल भाई पटेल, वो असेंबली के प्रेसिडेंट थे और उस वक्त वो सेंट्रल असेंबली में ही मौजूद थे। इनफैक्ट वो अपनी चेयर से खड़े ही हुए थे इन्हीं बिल पर रूलिंग देने के लिए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आकर बम फेंक देते हैं हाउस के बीच में गैलरी में और स्लोगन्स उठाते हैं, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद और कार्ल मार्क्स का फेमस स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये बम गिराने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। और ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे ये जो बम गिराया जाता है ये एक लो इंटेंसिटी बम होता है। इसका मकसद ये नहीं था कि किसी को मारा जाए बम गिरा के, बल्कि लोगों के कान खोले जाए। इस बम को गिराने के बाद कुछ छोटी मोटी इंजरीज ही आती हैं 6 लोगों को और किसी की मौत नहीं होती। इनफैक्ट ये जो बम गिराने का इंसिडेंट था पार्लियामेंट के बीचों बीच, ये इंस्पायर्ड होता है 1893 के एक इंसिडेंट से जो फ्रांस में हुआ था। फ्रेंच एनार्किस्ट ऑगस्ते वैलियांटे ने एक बम गिराया था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के बीच में। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि कैपिटलिज्म से भयंकर नुकसान होने लग रहा है लोगों को, जहां पर गरीब लोगों को और मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाने लग रहा है। उन्होंने कहा था ये बम मैंने इसलिए गिराया है ताकि इन बहरे लोगों के मैं कान खोल सकूं। इस बम फटने की जो आवाज गूंजेगी शायद वो इन बहरे लोगों के कान खोल दे। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। तो उनका भी मकसद किसी को मारना नहीं था ये बम फोड़कर यहां पर, बल्कि एक मैसेज कन्वे करना था। और इसी इंसिडेंट से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंस्पायर्ड थे। इनके अरेस्ट होने के बाद 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू होता है और फर्जी आरोप लगाए जाते हैं भगत सिंह के खिलाफ। ये कहा जाता है कि भगत सिंह ने गोलियां भी चलाई थी सेंट्रल असेंबली में। इन पर ना सिर्फ एक्सप्लोजिव एक्ट्स का आईपीसी सेक्शन लगाया जाता है, बल्कि 307 सेक्शन भी लगाया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर का। जबकि साफ क्लियरली दिख रहा था ये कि भगत सिंह का इंटेंशन किसी को मर्डर करना नहीं था, यहां पर बस एक मैसेज कन्वे करना था। कोर्ट में भगत सिंह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लीगल एडवाइस लेने के बाद, और बटुकेश्वर दत्त को रिप्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस के मेंबर और एमिनेंट लॉयर आसिफ अली के द्वारा। करीब 1 महीने बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंडर ये कोर्ट इन दोनों को सजा सुनाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, मतलब 14 साल जेल। Soon after the conviction of Dutt and Bhagat Singh, evidence was found in connection with the killing of Saunders and bomb depots were unearthed. Shiv Verma, Jaidev Kapoor, Rajguru, Jatin Das, Gaya Prasad, Kishori Lal and other revolutionaries were arrested. जब भगत सिंह जेल में थे तो ब्रिटिश लाहौर और सहारनपुर की बॉम्ब फैक्ट्री को भी डिस्कवर कर लेती है HSRA की, और कई और रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया जाता है इंक्लूडिंग राजगुरु और सुखदेव। इनमें से कई अरेस्टेड रेवोल्यूशनरीज मर्सी मांगकर सरकार के चमचे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार अब डॉट्स कनेक्ट कर पाती है लाहौर कंस्पिरेसी केस के साथ। भगत सिंह जो ऑलरेडी जेल में थे अब उन्हें रीअरेस्ट कर लिया जाता है और एक दूसरी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में समय बिताते वक्त भगत सिंह हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं और डिमांड करते हैं कि उन्हें एज पॉलिटिकल प्रिजनर ट्रीट किया जाए, और वो सारे प्रिजनर्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं। बेहतर खाना, बेटर क्लोथिंग, टॉयलेटरीज, एक्सेस टू बुक्स और डेली न्यूज़पेपर उन सबको मिले। ये एक बहुत बड़ा सवाल था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहता था कि भगत सिंह को एज लेजिटिमेट रेवोल्यूशनरी की तरह देखा जाए, एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह देखा जाए। वो चाहता था कि बस ये कॉमन वायलेंट क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हीं की तरह ही भगत सिंह को कंसिडर किया जाए। लेकिन इसकी वजह से अब भगत सिंह एक नेशनल आइकन बन जाते हैं देश के। देश भर में लोग जब भगत सिंह की कहानी सुनते हैं तो उनके लिए सपोर्ट जागता है। द ट्रिब्यून अखबार ने यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था भगत सिंह की कहानी लोगों तक पहुंचाने में।
जो लोग हैं वो लाहौर और अमृतसर में मिलते हैं। सरकार को सेक्शन 144 इंपोज करना पड़ता है लोगों की असेंबली को रोकने के लिए। इसी दौरान भगत सिंह करीब 6.5 किलो अपना वजन लूज कर चुके हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये हंगर स्ट्राइक लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे ही भगत सिंह की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। वाइसरॉय इरविन को चिंता होने लगी इस सिचुएशन को देखकर, इसलिए सॉन्डर्स के ट्रायल को एडवांस में ही स्टार्ट कर दिया गया जुलाई 1929। 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू आते हैं सेंट्रल जेल में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और कई और रेवोल्यूशनरीज से मिलने, जो उस वक्त हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। ये रेवोल्यूशनरीज डिसाइड करते हैं कि अपने खुद के ट्रायल को ही बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो होम मिनिस्टर थे वो सेंट्रल असेंबली ऑफ शिमला में एक नई अमेंडमेंट लाते हैं जो कहती है कि अब से अक्यूज्ड को खुद के ट्रायल में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर अक्यूज्ड अपने ट्रायल में प्रेजेंट भी नहीं है तो उसके बिना भी ट्रायल किया जा सकता है। इस चीज को लेकर जिन्ना भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर 1929 को। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, कोई मजाक नहीं है। ऑनरेबल लॉ मेंबर इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता कि खुद को भूख से तड़पा कर मरने के लिए तैयार। कुछ समय तक खुद भूखे रहने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो आदमी भूख हड़ताल पर जाता है उसके अंदर एक आत्मा है, वह अपनी आत्मा के रास्ते पर चलता है, उसे अपने मुद्दे के सही होने में विश्वास है, वह कोई राह चलता अपराधी नहीं। अगले दिन जतिंद्र नाथ दास शहीद हो जाते हैं आफ्टर 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। Jatin Das, a victim of police brutality, refused to break his fast, and on the 63rd day of his fast, he died, a martyr in the cause of freedom. Subhash Bose arranged for his body to be taken to Calcutta, where 500,000 people attended his funeral. जवाहरलाल नेहरू दूसरी तरफ सक्सेसफुली एक एडजर्नमेंट मोशन पास करवा देते हैं सेंट्रल असेंबली में लाहौर प्रिजनर्स की इनह्यूमेन ट्रीटमेंट के खिलाफ। भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। सिर्फ अपने पिताजी से मिलने के बाद ही आफ्टर 116 डेज 5 अक्टूबर 1929 को ये अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं। उस वक्त तक ये दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक्स बन चुकी है और दुनिया भर में भगत सिंह की कहानियां फैलती हैं। अगर हम उनके ट्रायल की बात करें तो भगत सिंह के 4 रेवोल्यूशनरी दोस्त उन्हें बैकस्टैब कर देते हैं कुछ रिश्वत के बदले। जय गोपाल, हंसराज वोरा, नाथ घोष और मनमोहन बैनर्जी, इन सबको ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ या तो पैसे दिए जाते हैं या कोई स्कॉलरशिप दी जाती है, स्पॉन्सर किया जाता है कोर्स के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कुछ एकड़ जमीन दी जाती है। और इन सब चीजों के बदले ये सारे लोग भगत सिंह के अगेंस्ट बोलते हैं ट्रायल में। लेकिन ट्रायल की स्पीड अभी भी काफी स्लो चल रही है क्योंकि भगत सिंह के किस्से दुनिया भर में फैल रहे हैं और इतना सपोर्ट जाग रहा है उनके लिए, ट्रायल की स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी। तो वाइसरॉय इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाता है ट्रायल के लिए। इस ऑर्डिनेंस को कभी भी सेंट्रल असेंबली से कोई अप्रूवल नहीं मिलता, ना ही कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलता है। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी एक्चुअली में वो टोटली इलीगल थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज को लेकर भी। अब यहां पर आता है महात्मा गांधी का रोल। 4 मई 1930 को गांधी वाइसरॉय को लिखते हैं इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए। भगत सिंह और दूसरों के ट्रायल में आपने ऑर्डिनरी प्रोसीजर को त्याग दिया और कानूनी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया। इन ऑफिशियल एक्टिविटीज को एक छुपा हुआ मार्शल कानून ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैसे महात्मा गांधी के विचारों के बारे में और जानने के लिए मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। इसके अलावा बुक्स हैं इंडिया आफ्टर गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी, इन दोनों की बुक समरीज आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कुकू एफएम को वैसे नहीं जानते तो कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ना सिर्फ बुक समरीज बल्कि बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। एक किताब को पढ़ने से ज्यादा मैं सुनना प्रेफर करता हूं क्योंकि आंखों को रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। आज के दिन वैसे भी हम स्क्रीन पर इतना ज्यादा देखते हैं, आंखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। कुकू एफएम पर आपको आमतौर पर 20% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे तो, लेकिन अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चलने लग रहा है। आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड गांधी50 इस्तेमाल करेंगे तो। एक कूपन कोड सिर्फ 3 अक्टूबर तक वैलिड है। इसका मतलब है आप लोगों के लिए कुकू एफएम की ईयरली कॉस्ट 200 रुपए से भी कम पड़ेगी, यानी एक मूवी के टिकट से भी कम प्राइस की। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह भी एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखते हैं ट्रिब्यूनल को, ये कहते हुए कि ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि उनका बेटा एक्चुअली में इनोसेंट है और भगत सिंह का एक्चुअली में कुछ भी लेना देना नहीं था सॉन्डर्स के मर्डर केस से। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बेटे को अपॉर्चुनिटी दी जाए अपनी इनोसेंस प्रूफ करने की। लेकिन जब भगत सिंह को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 4 अक्टूबर 1930 को वो एक लेटर लिखते हैं अपने पिताजी को, ये कहते हुए कि अगर ये चीज किसी और ने कही होती तो वो उसे एक ट्रेचरी कंसिडर करते, धोखेबाजी मानते, लेकिन क्योंकि ये उनके पापा ने किया था तो वो उसे एक वीकनेस ऑफ द वर्स्ट टाइप मानते हैं। उन्होंने कहा है, फादर यू हैव फेल्ड। भगत सिंह का मानना था एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उन्हें बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या लीगल लॉस कहते हैं, क्या कोर्ट कचेरी कहने लग रहा है इस चीज को लेकर। वो तो चाहते हैं कि उन्हें सबसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और वो इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। उन्होंने अपने फादर को कहा कि इस लेटर को पब्लिकली दिखा दिया जाए सबको, ताकि उनके विचार जनता भी देख सके। 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 1930 को इन द जॉन सॉन्डर्स एंड जनन सिंह मर्डर केस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सेंटेंस कर दिया जाता है फांसी के लिए। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया जाता है 14 साल के लिए इन दी असेंबली बॉम्बिंग केस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि बटुकेश्वर दत्त कोई मर्सी पिटिशन नहीं लिखते उन 14 सालों में। वो 14 साल काला पानी में रहते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं उस 14 सालों के बाद और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अनलाइक एक और फेमस नाम है, आप जानते ही होंगे कौन, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। लेकिन भगत सिंह की जान बचाने की मांग करते हुए देश भर से ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं वॉइस रॉय को। अखबारों में ऐसी चिट्ठियों को प्रिंट किया जाता है ढेरों पन्नों पर, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देश के बाहर से भी सपोर्ट आता है भगत सिंह के लिए। बर्लिन के एक जर्नलिस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड को इस केस की वजह से क्रूअल इंपीरियलिस्ट बुचर का नाम देते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो खुद की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस केस को लेकर आवाज उठाती है। वो कहती है ये केस सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इविल डिजायर ऑफ द इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। 31 जनवरी 1931 महात्मा गांधी इलाहाबाद में कहते हैं, उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यह कहता है कि ना केवल उनकी फांसी रुकनी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जब इरविन के साथ टॉक्स करते हैं 17 फरवरी को, वो कोई प्री कंडीशन नहीं रखते क्योंकि उनका मानना था कि आजादी तक का जो रास्ता है वो किसी के लिए भी नहीं रोका जा सकता। 14 फरवरी को कांग्रेस के मेंबर और लॉयर तेज बहादुर वाइसरॉय से बात करते हैं इस कन्विक्शन की लीगैलिटी को लेकर। एक और कांग्रेस लीडर मदन मोहन मालवीय अपील करते हैं कि कम से कम एक हैंगिंग को तो रुकवा दो, इन्हें लाइफ सेंटेंस ही दे दो चाहे। इस पॉइंट को कंसिडर करो कि भगत सिंह ने जो भी किया है अपनी सेल्फिश मोटिव की वजह से नहीं किया है बल्कि पेट्रियोटिक रीजंस की वजह से किया है। 18 फरवरी को महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं देश में जो माहौल है वो उनके फेवर में हो तो उन्हें भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देना चाहिए। इरविन इस चीज को मेंशन करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिपोर्ट में भी। महात्मा गांधी कोशिश करते हैं कि पहले इनकी फांसी को पोस्टपोन करा दिया जाए और बाद में देखेंगे इसे कैंसिल करने की जब सर्कमस्टांसेस और फेवर में होंगे। लेकिन पोस्टपोन कराना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी चीज को कराने के लिए वो आसफ अली को लाहौर भेजते हैं और एक अंडरटेकिंग की डिमांड करते हैं भगत सिंह और उनके कॉमरेड से कि वो वायलेंस को छोड़ दें, और ऐसा अगर कहेंगे भगत सिंह तो उनकी जो पोजीशन है बार्गेन करने की वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता। 7 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं दिल्ली में, मेरा जमीर कहता है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान को तो बिल्कुल नहीं। 17 मार्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं आजाद मैदान में। पब्लिक के सामने वो मांग उठाते हैं कि भगत सिंह की जो फांसी है उसे सस्पेंड किया जाए। अगले दिन 18 मार्च को भगत सिंह के जो डिफेंस लॉयर थे प्रनाथ मेहता, वो रिक्वेस्ट करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से कि प्लीज एक मर्सी पिटीशन लिख दो। ये सोचो कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो नेशनल ट्रेजर बन चुकी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं तो प्लीज देश की सोचो और एक पिटीशन लिख दो माफी मांगते हुए। और भगत सिंह ने पिटीशन लिखी पंजाब गवर्नर को, पिटीशन जरूर लिखी लेकिन ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं थी।
इन्होंने अपनी पेटिशन में लिखा कि जतिन दास, कॉमरेड भगवती चरण और इनके डियर वॉरियर आजाद अपनी जिंदगी को ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर चुके हैं। अब बारी है इनकी खुद की, राजगुरु की और सुखदेव की सैक्रिफाइस करने की। इन्होंने गवर्नर को लिखा कि कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के दिन गिनती के बचे हैं और आखिरी में कहा कि कोर्ट एक्नॉलेज कर चुका है कि ये एक वॉर प्रिजनर है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी फांसी हो, बल्कि ये चाहते हैं कि सीधा गोली मारकर इनकी हत्या करी जाए। सही सुना आपने, भगत सिंह ने अपनी पेटिशन में कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपनी पेटिशन में लिखा कि मुझे फांसी देने की जगह सीधा गोली मारो। अगले दिन 19 मार्च को महात्मा गांधी फिर से इरविन से मिलते हैं और कोशिश करते हैं भगत सिंह की फांसी रोकने की। इरविन इन्हें कहते हैं कि इन्होंने इस केस को विद द मोस्ट एंशियस केयर देखा है और उनकी राय में इनकी फांसी को रोकना सही नहीं है। आई डिड नॉट फाइंड एनी बेसिस टू कन्विंस माई सेल्फ टू कम्यूट द सेंटेंस। बताया जाता है कि वाइसरॉय के ऊपर खुद प्रेशर था पंजाब एरिया के ब्रिटिश ऑफिसर से, जो सही में चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी दी जाए और अगर नहीं दी जाएगी तो वो मास रिजाइन कर देंगे, जो कि वाइसरॉय की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगले दिन 20 मार्च को महात्मा गांधी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से मिलते हैं इस कोशिश में कि इस फांसी को पोस्टपोन कराया जा सके, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। इसके अगले दिन 21 मार्च को, इवन दो इरविन इन्हें फाइनल रिफ्यूजल दे चुके हैं, ये एक बार फिर से इरविन से जाकर बात करते हैं। ये अटेम्प्ट भी फेल। 22 मार्च को एक और डेस्परेट अटेम्प्ट किया जाता है इनके द्वारा। इरविन महात्मा गांधी को प्रॉमिस करते हैं कि वो रिकंसिडर करेंगे इनके सबमिशन को और 23 मार्च की सुबह को एक पर्सनल लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी इरविन को। इस लेटर में गांधी अपनी पूरी जान लगा देते हैं। ये अपील करते हैं इरविन को रिलीजियस व्यूज पर, उनके पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर, इंटरनल पीस के बेसिस पर और अपनी खुद की राय पर। मतलब उन्होंने इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग रीजनिंग्स देकर कन्विंस करने की कोशिश करी इरविन को, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह के लॉयर प्रनाथ मेहता भगत सिंह से आखिरी दिन मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इंडियंस के लिए उनका फाइनल मैसेज क्या रहेगा। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं 2 मैसेजेस के साथ, डाउन विद इंपीरियलिज्म और लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, यानी इनकलाब जिंदाबाद। वो पूछते हैं भगत सिंह से उन्हें कैसा फील हो रहा है। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं हैप्पी एज ऑलवेज, हमेशा की तरह वो खुश है। और फाइनली सिंह प्रनाथ मेहता को कहते हैं कि प्लीज पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की खुद की कॉज में काफी इंटरेस्ट दिखाया था। ये सब जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ महात्मा गांधी की खुद की राइटिंग्स में मिलेंगी, बल्कि इरविन की खुद की राइटिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो खुद लिखा था, आसफ अली ने जो लिखा था, उनकी वाइफ अरुण आसफ अली ने जो लिखा था, इन सारे सोर्सेज में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ सोर्सेज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, अगर आप खुद से रेफर करना चाहें तो। कमाल की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं करी भगत सिंह को बचाने की। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। इनफैक्ट भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह ने बाद में एक स्पीच में ये भी कहा था, भगत सिंह ने मुझसे कहा चिंता ना करो, मैनू फांसी हो जाने दो, पर उसने मुझसे एक जोरदार दरख्वास्त करी, आपको अपने जनरल का समर्थन करना है, आपको सभी कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करना है, तभी आप देश के लिए आजादी जीत पाओगे। कराची सेशन रेजोल्यूशन में कांग्रेस ऑफिशियली इस एग्जीक्यूशन को कंडेम करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखने को मिलेगा जो उन्होंने किया हो भगत सिंह को बचाने के लिए। बस उनकी तरफ से कह सकते हो मोर और लेस टोटल साइलेंस देखने को मिला था इस इंसिडेंट को लेकर। तो इस वीडियो से अगर आप कोई एक लेसन निकाल कर लेकर जाना चाहते हैं तो मेरी राय में वो ये होगा कि अगर आप भगत सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं तो महात्मा गांधी को भी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Failing is not determined by falling, it's determined by quitting. You don't have to quit where you fail. You don't have to quit wherever you fail.
You don't have to quit there. Don't stay there. You don't drown because you fall into the water. You drown because you stay there. That's what Proverbs 24:16 is saying, that you may fall, but don't stay there. Get back up. Just get back up. I tell people I only have two positions. I'm either up or I'm getting up. I'm either up or I'm getting up. Don't ever get comfortable in a down situation. Don't ever get comfortable. That's not your destination. Please understand this. Failure is not the opposite of success. It's part of success. Please understand that very clearly. Failure is not the opposite of success. It's part of success. Don't run from failure. Learn from it. Don't run from failure. Learn from it. Embrace it. Fail forward. It gives you an experience. It capacitates you. It further equips you to be able to succeed in the next thing that you're going to do. But failure is not a loss, it's a gain. Why is it a gain? It's because you learn, it's because you change, it's because you evolve, it is because you emerge, it's because you develop, it because you come out of it better. A person who is afflicted with the fear of failure considers the possibility of failing so intense that he chooses not even to take the risk. I've known people, and you have too, who are so afraid of failing they could not possibly succeed. And Michael Jordan, he says this: I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot, and I missed. I failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Realize failure is not final. Failure is not final. We live in a culture that says, if at first you don't succeed, give up. No. You know, one reason most of us don't venture out and start pursuing our God-given dreams in life, we are paralyzed by the fear of failure. We think, oh, what if I apply for this job and I don't get it? You know, what if I ask that person out on a date and they don't say yes? What if I, do this and it doesn't work? They're paralyzed by failure. Remember this, nobody stubbed his toes standing still. I mean, if you're moving forward, you are going to stub your toe from time to time, but you're also going to move forward. I mean, I think of Thomas J. Watson, the founder of IBM. He said, the way to succeed is to double your failure rate. What do you mean by that? Double your failure rate. He was saying the more times you try something, the more ventures you pursue, yes, the more times you're going to fail, but you're also going to succeed more as well. You have to fail if you're going to succeed. George Bernard Shaw, great novelist, had his first 5 novels rejected. Babe Ruth struck out 1,330 times, but he's considered one of America's greatest baseball players. Thomas Edison discovered 1,800 ways not to make a light bulb. That's why it is important that we understand that failure is not final. We all experience failure in life. Now, if you are in Christ, you are not a failure. You may fail, but we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? We are victors, not victims, and we have the opportunity always, when we fail, to come back. When we lose, to get up again and get going. That if you are not dead, you're not done. If you are still breathing, there is a life to be lived, a purpose in your life to be fulfilled in Christ. You can rebound. You can recover. You can be restored. Because what I want you to hear today is that it's never too late for a new beginning. And some of you need to hear that message today because you've been sitting back in your comfort zone. You've been waiting, and I don't know what for. But God has a plan for your life. He has something He wants you to do. It may be simple or it may be complex, but if God is in it, you need to step out in faith and do it, and count on the fact that God will never ask you to do something He won't help you do. And He will be with you. There's someone watching you right now and how you're going to walk through your next failure.
Because isn't it true that when it comes to failure, it's not a matter of if, but when? And it's how we respond when we fail that determines the outcome of our story. No one else gets to define who you are except the one that made you. Everyone's going to try, and you know what's going to really try to define you? Your failures. Can I just start right off the bat by emphasizing this important truth? Let your failures refine you, but don't let them define you. Let them refine you. Yes, learn from your failures so you don't repeat them. That's how you fail forward. But don't let them define you. Don't let them now put a label over your head and say, because you failed here, this is now who you are. Just because you fail, and we all do, it doesn't mean you are a failure. You can only stumble if you're moving. If you don't have a few failures, you're not taking enough chances. And the secret, it seems, is to cheerfully embrace your failure, part of life, and to count on your coming successes to outweigh them. Well, failure is not so much the event, what happened, as the judgment you make about the event. Your God-given position, it's not failure. Failure is a place of reference, yes. Learn from it. Figure out where you went off track, where you went off map, where you missed God's will. It's a place of reference, but it's not a place of resonance. Don't live there. He's never called us to live in failure. He's called us to live in the Father. We're going to have to come to grips with this failure deal because there is simply no way to move forward in the Christian life or in life in general without willingness to risk failure. And the question is not, will I fail? The question is, when I fail, will I learn, will I grow, and refuse to be defeated by it? We fail because we have to learn to grow. We have to grow. We fail in order to grow. You fail forward. Our failures help us to come back and approach life more intelligently, with a deeper godly conviction, with a greater depth of love and compassion and mercy and understanding. We grow through that. We have to fail so that we can grow. Let your kids have some failures. Failure is never final. Never final. They'll learn from their mistakes. Let them make some mistakes. What you don't know is that the best lessons I've learned through inadequacy and failure, disappointment and heartbreak and forgiveness. By the grace of God, I've come to the place where I no longer fear failure, and I've come to the place where I will be always grateful for God's grace to forgive when I don't measure up to my unrealistic standard. The good news is that God in His grace uses us, warts and all. I believe that the price for a full life is mistakes. Mistakes are the price for a full life that you have to pay if you learn from them. I believe that hell wants to maim you and mock you with your mistakes. But heaven wants to make you and transform you by your mistakes. Failure should not become a prison house where you're held hostage the rest of your life by your mistakes. That's not God's voice. That's not God's will. That's not God's plan for you. Your mistakes are not final. Your failure is not final. Rejoice not over me, O my enemies, for when I fall, I will rise again. You might have made a mistake, but you're not one. You might have failed, but you're not a failure. You might be down, but down is not your destiny. There is a resurrection coming to your dream, to your life, to your call, to your purpose. You might have fallen and you might have failed and you might have made a mistake, but you are not a mistake. And God will never define you by the worst mistake and choice you made in life. Critics will, attackers will, haters will, people will, but God will never define you by your worst mistake. And I need you to think Him that great is His mercy towards us. Abraham, Joseph, Moses,
made some pretty world-class mistakes. None of them got a perfect track record. They've all been in trouble. But each of them had a success that eclipsed or was greater than the magnitude of their failure. Is that fair? You know their stories. I won't belabor them. And I think we could extrapolate from that their area of failure became the arena of their greatest success. That the things that were problematic to them, it proved to be the incubator or the soil from which their great successes came from. The great triumph of Joseph's life, I don't think, was in his ability to manage Egypt's economy. I think it was in the way he interacted with his family when they presented themselves some years later. Is that failures don't disqualify you. You see, you're going to make mistakes. I will, I do, you will, you have. But that doesn't make you a mistake. Throughout Scripture, we see a God of second and third and many, many chances who uses people who have failed miserably but have been restored by grace to accomplish His purpose in their lifetime. If you don't believe me, just grab this book and start flipping through the pages, and you will run into the name of Noah and Abraham and Moses and Gideon and Samson and Jonah and David and the Apostle Paul, and you would just keep running into name after name of failures, of mess-ups, sinful people. Failure in the past does not nullify purpose in the future. And aren't you glad this morning that God doesn't give up on us when we fail? I love the story of Simon Peter. I love the fact that God loved him after he messed up. That's why when the angel appeared at the tomb, the angel said, Jesus wants me to specifically name one of the disciples by name. He said, go tell my disciples and Simon Peter to meet me in the upper room. The same guy who denied Christ, the same guy who lied, the same guy who cut a man and got violent, the same guy who failed and failed miserably. He said, you tell my disciples and you tell Peter. He named him specifically, I believe, because he wanted his critics to hear, I do believe in my good disciples, but I also still believe in my fallen disciples. And I'm here to preach to some people who've messed up and the enemy's told you, your call is over, you're blessed, your dream is shredded, you don't have any hope, you don't have any future. There is restoration available for you, and he still has his hand on your life. Isn't this something that it was Simon Peter who preached on the day of Pentecost? He didn't choose the other 11, he chose the one who messed up. And that's what I've come to prophesy and preach to tonight, that some of you have fallen, some of you did it, some of you messed up, but the Lord sent me to tell you there's still life in your dream, there's still life in your call, there's still life in your purpose, there's still life in what God has called you to do. It's in this walk with Christ that it's okay to fail. Jesus is there to restore and reinstate you and love you because he's got kingdom work for you to do. You see, Peter's greatest contribution to God's kingdom came out of his failure. What he learned the most from God was birthed out of his deepest failure. This is not just true for Peter. This is true for me, and it is true for you. It is the cross of Christ that allows for our failures to be transformed into triumph. You want to know who said that? The Apostle Peter. And just because you failed doesn't mean Jesus is done with you. It very well could be the start of Jesus powerfully working through you. Today, you can have a new beginning with God. He doesn't throw you away because you messed up. Can we all say amen to that? God is a God of a second chance. Forget it. I've heard people say God is the God of a second chance. That's ridiculous to me. How about God is the God of the 2 millionth chance?
You're going to make it. Just start anew, fresh with God today. You can always have a new beginning with God. If you just come to Him, He will help you. He loves you. Don't believe what the devil says. He loves you. Don't believe what some voice in your mind says. He loves you. He loves you. God loves you. I know He's perfect and you and I are a mess, but He loves you. That's the kind of God He is. When and if you fail, Jesus' right hand still wholly is adequate to save. Though the righteous man falls 7 times, the Lord will uphold him. There is no mistake you can make that puts you outside of the grace, the strength, and sufficiency of Jesus' right hand. The world needs hope. Hope is a powerful word. The Latins have a word for hope, and it means breath, to give oxygen to someone. Hope is a reality. Hope is something that is real. Hope is what keeps us going. That it is only God who can bring hope and new life out of dead situations. God Himself is the one that provides for us the hope that we need in times like these. Hope has the power to fill our lives with happiness. We learn to cultivate hope the same way we learn to walk, one step at a time. There may be times when we must make a courageous decision to hope even when everything around us contradicts this hope. Like Father Abraham, we will, against hope, believe in hope. Or as one writer expressed, in the midst of winter, we find within us an invincible summer. Hope sustains us through despair. If only we could glimpse for a moment what the Lord has in store for us, not only in the next life, but in this one as well. Our hope would be unshakable, and despair could never overcome us. Hope teaches that there is reason to rejoice even when all seems dark around us. And to all who suffer, to all who feel discouraged, worried or lonely, I say with love and deep concern for you, never give in, never surrender, never allow despair to overcome your spirit. For the love of the Son of God pierces all darkness, softens all sorrow, and gladdens every heart. A traditional Russian saying is that hope dies last, which, as one Russian explained, it means that as long as you are alive, you have hope. And that even if everything is very, very bad around you, if you have hope, you can survive. While it may not seem like much, the smallest form of hope, the smallest desire to believe, can be the first step in a miraculous process through which God can exalt us. So, if at times you can't really see very clearly, or really not at all, if all you can do is hang on to one thread and hope it holds, then hang on and hope. That will be enough to start the process. If you then turn to the Savior and sincerely ask for His help, He will take what little you have to offer and turn it into magnificent, exalting hope, which can be an anchor to your soul. In times of distress, we can hold tightly to the hope that things will work together for our good. This type of hope in God, His goodness, and His power refreshes us with courage during difficult challenges and gives us strength to those who feel threatened by enclosing walls of fear, doubt, and despair. The adversary uses despair to bind hearts and minds in suffocating darkness. Despair drains from us all that is vibrant and joyful and leaves behind the empty remnants of what life was meant to be. Despair kills ambition, advances sickness,
pollutes the soul and deadens the heart. Despair can seem like a staircase that leads only and forever downward. Hope, on the other hand, is like the beam of sunlight rising up and above the horizon of our present circumstances. It pierces the darkness with a brilliant dawn. It encourages, inspires us to place our trust in the loving care of an eternal Heavenly Father who has prepared a way for those who seek for eternal truth in a world of relativism, confusion, and of fear. Because of the sacrifice of Jesus Christ, we need not fear, for we will live forever, never to taste of death again. Because of his infinite atonement, we can be cleansed of sin and stand pure and holy before the judgment bar. The Savior is truly the author of our salvation. Put your hope in him. Put your trust in him. Put your hope in God. He will not fail. It is the constant exercise of faith in Christ that transforms what would otherwise be merely wishful thinking into the kind of hope that can become an anchor to our soul. We have to plant our desires, our hope in him. Because of his atoning sacrifice, Christ has the power to transform all our righteous desires into reality. Our role is to believe in him and his gospel and teachings enough that he can work with us, that we will allow him to shape our desires so that our will aligns with his. Thus, if we want to strengthen our hope, we must focus more on the Savior, especially when we feel hopeless. And hope is not, well, I just hope something happens. Hope is an expectation that something good is going to happen. And see, you can do that on purpose. You don't have to wait to feel something. You can say, tonight, I am going to change my attitude from a hopeless attitude to a hopeful attitude, and I am going to keep believing that something good is going to happen to me until I see it take place. Listen, I know what it's like to go through hard things. I know what it's like to have so many bad things happen in a row that you're almost afraid to expect anything good because you just don't want to be disappointed one more time. Amen? And boy, the devil loves it when we get hopeless, when we begin to think that we've just made too many mistakes to ever recover. But let me tell you something, nobody can out-sin God's goodness. Did you hear me? There's no pit so deep that he can't reach down in it and get you out. And God loves you, and he wants a close, intimate, personal relationship with you. Jesus didn't die so we could all just have some brand of religion. He wants to have a relationship, a personal, in your face, in your life, every day relationship with you. And God is a God of restoration, and there's nothing in your life that he cannot restore. Amen? So how about if we have a new attitude? Today is the first day of the rest of my wonderful life that God has planned for me. And I'm going to let go of what lies behind, and I'm going to press on to the good things that are ahead. Teachers matter because we learn different things every day. They push you to always believe that even if something is hard, you can still achieve it. They're constantly encouraging me, and they're trying to make me reach that stretch goal. My teacher has taught me to worry about my education, what life will be in my future if I don't finish high school. Mr. Coffey's taught me how to count. She's definitely taught me to not be biased. He's taught me some great science. She makes me look for more sources. For me to see that somebody was just like me and was able to succeed, she has inspired me to be a better person. I love Mick. Good.
Having a great teacher makes things possible. He's my dad, he's my mom, he's my friend, he's my psychiatrist. He kind of believes in me unconditionally, so that way it's easier to believe in yourself. They got taught by another teacher, and a teacher got taught by another one. So all kinds of teachers teach other teachers how to teach kids. When you think you've got the job down, that's the time to be nervous. As teachers, we have to learn how to adapt. Children learn different ways. They learn by touching, they learn by doing, they learn by seeing or hearing. The teachers always make it fun for us, into games for us. It's weird to say quizzes are fun, but yeah, he makes them fun. Good teaching is performance. Their job is to inspire you to do something with your life. And I love that, blowing their mind. The goal is to make them better for whatever that's worth. And that's the biggest reward ever. It's really cool. You touch one child's life, I mean, that's everything. It's everything.